students, class 7, this is Samuel sir. Today, before to start new chapter, I would like to say something, that is, these days you all are focusing on your study and it's very good to hear that. And best luck, good luck, and keep continuing like this. So today, for the new chapter that today we are going to start, like I said, in literature, chapter 2, the chill pill. After completing this chapter, then we will start poem, and that is chapter 1 in your book literature, and the poem name is, let me show you, poem Lily of the Valley. So today we will have the discussion on this poem, so get ready with your books. Before to begin this poem, I would like to say something about the writer. That is, there are two writers. Name is Jane Taylor. One of the writers' name is Jane Taylor, and Jane Taylor, and another one is Anne Taylor. And these both are brothers. Uh, sister. And Jane Taylor, 23 September 1783, 13 April 1884. It is the mentioning about the birth and death. And Anna Taylor, 30 January 1782, 20 December 1866, that she was departed from the earth to the heaven. So these are the two sisters who wrote this poem. One of the sister, she was novelist and as well as poet also. Anna Taylor was her elder sister, and she was also a poet, literary critic. That means we call साहित्यिक समीक्षक जिसे बोलते हैं in Hindi. And in her youth she was a writer of words for children. और बच्चों के लिए उन्होंने बहुत से लेख लिखे हैं, जिसमें कि वो बहुत ही बच्चों के लिए निपुण रूप से बहुत सारे बच्चों के लिए लेख लिखा है. फॉर विच शी अचीव लॉन्ग लास्टिंग पॉपुलैरिटी, और जिसके कारण से, है ना, उनके बिकॉज ऑफ द दैट वर्ड्स दैट स्पेशली फॉर चिल्ड्रन दैट शी रोट, तो उसके कारण से उनको लोकप्रियता, जिसे पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता, लॉन्ग लास्टिंग, उनका जो रचनाएं थी बहुत लंबे समय तक उनकी रचनाएं, और जबकि अभी भी उनकी रचनाएं चलती है. तो उनमें से वन ऑफ द पोएम दैट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हर दैट क्रिएशन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड अबाउट दैट पोएम, एंड दैट पोएम इज लिली ऑफ द वैली. एंड लिली ऑफ द वैली, देयर इज सम colorful statements, colorful words that are written. So here is something is telling about. Before to start the poem, let us find out what is that. Is there anything to be learned from a small and insignificant creations of God? Something question is asking here in that colorful words of statements. तो इसमें कुछ पूछा गया, इज देयर एनीथिंग टू बी लर्न फ्रॉम स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट क्रिएशन ऑफ गॉड. तो यहाँ पे वन ऑफ द क्वेश्चन इज अराइजन दैट इनसिग्निफिकेंट क्रिएशंस. इनसिग्निफिकेंट, दैट मीन्स बहुत ही, क्या हम छोटे से चीज़ों से भी, है ना, सीख सकते हैं जो कि महत्वपूर्ण ईश्वर की रचना है. तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. Read this poem to find out what we can learn from an ordinary flower. एक साधारण फूल से हम लोग एक छोटी सी फूल, यानी कि एक छोटे से चीज जो कि फूल के रूप में है, उससे भी हम लोग अपने जिंदगी में चीजें सीख सकते हैं. तो that's why in colorful words, that's why it's telling something special, that the God created from each minor things. Not, it is not necessary that from the major things that we can understand, but from the minor things also we can understand of the importance.
we can learn from that also. तो स्मॉल स्मॉल चीज वाट एवर द गॉड क्रिएटेड, छोटे छोटे चीज जो कि ईश्वर ने बनाए हैं, गॉड ने बनाए हैं, उन चीजों से भी हम लोग सीख सकते हैं. तो दैट्स वाई particularly of that things that the writer focused, and it is written for that particular things to uh, to show how the small things, from the small things that we can learn. तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं. तो पोएम उसी के विषय में है. कम माई लव एंड डू नॉट स्पर्न फ्रॉम ए लिटिल फ्लावर टू लर्न, सी द लिली ऑन द बैक hanging down its modest head, while it scarcely can be seen folded in its leaf of green. तो इसमें क्या कहा है? Come my love. Love, who is love? It is referring to the children. बच्चों को love बोला हुआ है ना? And do the spurn. Spurn का मतलब होता है reject. Spurn का मतलब होता है reject. And modest, simple. That means साधारण. Reject का मतलब ठुकराना. और स्कैर्सली का मतलब मुश्किल से, या फोल्डेड. फोल्डेड मीन्स मुड़ा हुआ. तो दीज आर द हियर इन द स्टेंजा इट इज रिटन सर्टेन वर्ड्स. तो इनके बहुत से मतलब है. कैसे? कम माई लव एंड डू नॉट स्पर्न. कम माई लव, लव बच्चे को कहा गया. तो बच्चे को क्या क्या है बोला गया है? कम टू मी, डू नॉट रिजेक्ट मी बोल रहा है कि मैं, आओ बच्चों मेरे पास आओ. डू नॉट स्पर्न, मुझे मत ठुकरा. फ्रॉम ए लिटिल फ्लावर टू लर्न, छोटे से एक फूल जो है. आई विल शो यू लिटिल फ्लावर, यानी कि छोटे से फूल से मैं आपको सिखाता हूँ. क्या सिखाता हूँ? सी द लिली ऑन द बेड, देखो यहाँ पे एक छोटी सी फूल जो कि पत्तों के बीच में है. हैंगिंग डाउन इट्स मोडेस्ट हेड, हैंगिंग डाउन इट्स मोडेस्ट हेड, यानी कि वो जो फूल जो आप किताब में देख सकते हैं. इन योर इट इज देयर इज अ पिक्चर दैट यू कैन सी, है ना. हैंगिंग डाउन, वो अपने सर को क्या किए हुए? फूल अपने सर को झुकाए हुए, है ना, सर को झुकाए हुए है. और ये मॉडेस्ट का मतलब क्या? साधारण, यानी कि वो अपने सिंप्लिसिटी को दर्शा रही है ना. तो while it's scarcely can be seen, और ये बड़े ही मुश्किल से ऐसे लिली पाए जाते हैं. बिकॉज इन एवरी एरिया, है ना, लिली इन द वैली और इन एनी एरिया, सच टाइप ऑफ लिलीज कैन नॉट फाइंड एनीवेयर, कहीं पर भी नहीं पाया जा सकता है ना. कैन नॉट बी फाउंड एनीवेयर. वाई इट इज सो? बिकॉज इट इज वेरी रेयर, और ये बहुत ही रेयर है फ्लावर, जो कि मुश्किल से ही इस प्रकार के फूल पाए जाते हैं. तो ये राइटर इस पोएम से, फ्रॉम दिस पोएम से, ये ही वांटेड टू शो दैट हाउ द लिली हैज द सिंपलिसिटी. उसमें कितना साधारणपनता है, मोडेस्ट, है ना, मोडेस्ट साधारणपनता है उसमें, है ना. और वो इतना साधारण है कि वो हमें भी उसी प्रकार से साधारणपन अपने जीवन में रखना चाहिए. फोल्डेड इन द लीफ ऑफ ग्रीन, फोल्डेड मुड़ा हुआ, जिस प्रकार से ये फूल, है ना, झुककर एक अपना सिंप्लिसिटी, साधारणपनता को वो दर्शा रही है. और पत्तों के बीच में ये झुककर अपने सिर को झुकाए रही है. तो वो इससे ये राइटर दर्शाना चाहता है कि हमारे जीवन में सिंपल सिटी होना, साधारणपनता, जिसे हम लोग मोडेस्ट बोलते हैं, ये होना बहुत ही जरूरी है. और साधारण पर हर एक के जीवन में होना जरूरी है, उसे अपने जीवन में रखना चाहिए. Yet we love the lily well for its sweet and pleasant smell, and would rather call it our than a many gayer flower pretty like seems to be emblem of humility. तो यहाँ पे बोलने का मतलब क्या है? बोलने से कि yet we love the lily well, हम लोग फिर भी लिली को पसंद करते हैं. for its sweet and pleasant smell, उसके किस चीज को? उनके
प्लीजेंट यहाँ पे हैप्पीनेस को बोला गया है ना। उसके स्मेल जो है बहुत ही हम लोग को खुशी देती है। तो yet we love the lily well for its sweet and pleasant smell and would rather call it sour। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो लिली है वो अपने आप को ये बता रही है, हम लोग yet we love the lily well, हम लोग लिली को प्यार पसंद करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग उसको पसंद नहीं करते हैं जिसमें कि साधारणपनता ना हो। एंड वुड रेदर कॉल इट अवर, तो हम लोग उसके साधारणपनता को पसंद करते हैं, उसके उन सिंपलिसिटी को पसंद करते हैं। और दूसरा, हम लोग घमंड, ये चीज़ हम लोग के लाइफ में नहीं आना चाहिए। तो इस प्रकार से भावना को ये फूल, ये लिली वैली, जो लिली फ्लावर है वो दर्शा रहा है। एंड वुड रेदर कॉल इट्स और देन अ मैनी गेयर फ्लावर, जिस प्रकार से जो अन्य फूल, जिस प्रकार से सुबह उन लोग उठते हैं, सुबह वो फूल खिलता है और उसके बाद वो फूल क्या हो जाता है, मर जाता है। और कुछ फूल ऐसे होते हैं जो कि सुबह शाम को खिलता है और सुबह को मर जाता है। तो इस प्रकार का बताया गया है कि that many gay flowers pretty lilies seem to be emblem of humility। इसीलिए, लेकिन ये लिली क्या दर्शा रहा है, ये लिली ये दर्शा रहा है कि ह्यूमिलिटी को दर्शा रहा है। वो एम्ब्लम का मतलब होता है सिंबल्स, जिसे हम लोग प्रतीक, वो किस चीज का प्रतीक है, नम्रता का प्रतीक है। वो हमेशा लोगों के सामने, इसीलिए हम लोग को हर एक लोगों के सामने नम्रता से पेश आना चाहिए। जिस प्रकार से एक लिली फ्लावर बता रही है अपने को, जिस प्रकार से वो हमेशा क्या करती है कि झुककर हमेशा वो रहती है। और झुककर मतलब, इसका मतलब क्या है, वो ह्यूमिलिटी को दर्शा रही है, नम्रता को दर्शा रही है। तो इस प्रकार से हमारे लाइफ में भी नम्रता हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। नाउ कम माई लव एंड डू नॉट स्पर्न फ्रॉम ए लिटिल फ्लावर टू लर्न। तो इसीलिए इसमें भी फिर से वही बात को दोहराया गया, कम माई लव, आओ बच्चों, है ना, मुझे मत ठुकराओ, मुझसे सीखो, मेरे ये छोटे से पौधे फ्लावर से, छोटे से फूल से सीखो। लेट्स योर टेम्पर बी एज स्वीट एज द लिली एट योर फीट, बी अ जेंटल, बी एज माइल्ड, बी अ मोडेस्ट सिंपल चाइल्ड। तो यहाँ पे बता रहा है कि लेट योर टेम्पर बी एज स्वीट, आप लोग का जो भी मनोदशा है वो मनोदशा क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, है ना। फूल जिस प्रकार से एकदम हमेशा अपनी स्वीटनेस को बिखेरती है, उसी प्रकार से हम अपने जीवन में अपनी मनोदशा से लोगों को खुश रखें। एज यू लिली एट योर फीट, चाहे लिली जिस प्रकार से वो भगवान के, गॉड के चरणों में उस फूलों को रखा जाता है, चरणों में भी होता है और वो चरणों में भी उसका चढ़ाया जाता है। बी एज जेंटल बी एज माइल्ड, तो यहाँ पर वो फूल चरणों में भी चढ़ाया जाता है, उसको पूजा भी जाता है और उसे भगवान के चरणों में भी चढ़ाया जाता है। और कभी कभी ये हमारे चरणों में भी गिर जाता है। तो बी एज, इससे ये पता चलता है कि बी एज जेंटल बी एज माइल्ड, यानी कि सौम्य, जेंटल का मतलब सौम्य या शांत, है ना, माइल्ड का मतलब विनम्र। हमें भी अपनी जिंदगी में विनम्रता होनी चाहिए और हमें भी सौम्य और शांत होना चाहिए। बी अ मॉडेस्ट सिंपल चाइल्ड, और हमें हमेशा एक साधारण, मॉडेस्ट का मतलब साधारण, सिंपल होना चाहिए। जिस प्रकार से सिंपलिसिटी हमें हमेशा अपनी लाइफ में बनाए रखना चाहिए। टी इज not beauty that we prize, like a summer flower it dies, but humility will last, fair and sweet when beauty is past, and the savior from above views a humble child with love। तो इसमें ये कहा गया है कि दिस इज नॉट ब्यूटी दैट वी प्राइज, चाहे ये ब्यूटी नहीं का, जो ऊपरी जो दिखावा होता है, जो ऊपरी अपीयरेंस, व्हाट वी से दैट व्हाट इज द आउटर अपीयरेंस दैट नॉट इम्पोर्टेंट। इसमें जो बाहरी अपीयरेंस है, दिखावा है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है।
कि ये फूल बहुत सुंदर है, ये वो नहीं बता रहा है। लाइक ए समर फ्लावर इट डाइज, जिस प्रकार से कोई फूल है ना खिलता है और रात के समय मर जाता है, और कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो उगते भी हैं और तुरंत खत्म भी हो जाते हैं। लेकिन ये लिली क्या है, ह्यूमिलिटी विल लास्ट। तो यहाँ पे बता रहा है कि ये नम्र होकर, अपने ह्यूमिलिटी नम्र होकर वो आगे बढ़ते या खिलते रहती है, बट ह्यूमिलिटी विल लास्ट। तो इसीलिए पता हमारे जीवन में भी नम्रता होना जरूरी है, और नम्रता ही आगे जीवन में आगे की ओर बढ़ता है। फेयर एंड स्वीट विथ ब्यूटी पास्ट एंड द सेवियर फ्रॉम अबव। तो इसीलिए ऊपर वाला भी, जो सेवियर का मतलब बचाने वाला, इन सारे कैरेक्टर को, सेवियर भी इन सारे चीज़ों को देखकर, कैरेक्टर को देखकर, वो भी व्यूज है हम्बल चाइल्ड विथ लव, वो देखता है ऊपर से, और वो इस प्रकार के बच्चों को देखता है जिसमें कि नम्रता हो, जिसमें कि सिंपलसिटी हो, और जिसमें ह्यूमिलिटी हो, है ना। इस प्रकार के कैरेक्टर को वो चाहता है, और वो अपने ऊपर वाला अपने प्रेम से उस ऐसे बच्चे के दिल में और ज़्यादा भर देता है। तो इस कहानी से हम, इस पोएम से यही हम लोग समझते हैं कि हमें अपने लाइफ में मोडेस्ट होना चाहिए, है ना, मोडेस्ट होना चाहिए, जेंटल होना चाहिए, माइल्ड होना चाहिए, और साथ में ह्यूमिलिटी होना चाहिए। तो ये प्रकार से ही हम लोग अपने लाइफ में यदि ये सारा चीज़ है तो हमारे लाइफ क्या होगा, खुशियों से भरेगा, और गॉड उसी को पसंद करता है जिसमें ये प्रकार का कैरेक्टर हो। थैंक यू, आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस पोएम। सो these are the homework reference to context A and B, answer these questions. Thank you.